A warm welcome students to our Ambition Study Center's online classes. So today we are going to learn practice set 2.1. Let us see what we have to do in 2.1. We have studied until now the definitions of Pythagoras theorem, various properties related to similarity and right angle triangles, theorem on geometric mean. All the things are going to be used in this exercise number 2.1. Let us see what is the first question. Identify with reason which of the following are Pythagorean triplet. Identify with a reason which of the following are Pythagorean triplet. What is the definition of Pythagorean triplet? In a triplet of natural number, if the square of the largest side is equal to the sum of the squares of the remaining two numbers, then the then the triplet is a Pythagorean triplet. So let's see how to solve this. We have a first triplet 3, 5, 4, but let's see whether it is a Pythagorean triplet or not. Okay, so largest number, square means 5 square is equals to 25. Okay, let us assume it as the equation number 1. Sum of squares of remaining two numbers. Let us see what does it become. 3 square plus 4 square is equals to 9 plus 16 is equals to 25. So from 1 and 2 what do we get? From 1 and 2 we get, what do we get? 3 square plus 4 square is equals to 5 square. Therefore, we are going to write the square of the largest number. The square of the largest number is equal to the square of the largest number is equal to the sum of the square of the squares of the remaining two numbers. Therefore 3, 5, 4 is Pythagorean triplet. It is a Pythagorean triplet. आराधन में इसी वे में करना है आप लोगों को, ठीक है? सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे. Let us check the second one. 4, 9, 12. 4, 9, 12. 4, 9, 12. Let us check whether it is a Pythagorean triplet or not. Largest number square means 12 square means 144. Sum of squares of the remaining two numbers is equals to 4 square plus 9 square is equals to 16 plus 81. This is equals to, means the 4 square plus 9 square equals to 797. Equation number 2. From 1 and 2 what do we get? From 1 and 2, what do we get? From 1 and 2 we get, what do we get? From 1 and 2 we get largest number square is not equals to the sum of the squares of the remaining two numbers. Therefore the square of the largest number is not equal to sum of the squares of remaining two numbers.
Therefore 4, 9, 12 is not a Pythagorean triplet. आ रहा है ध्यान में? ये आ गया ध्यान में आप लोगों के पाइथागोरियन ट्रिपलेट वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं? तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 and 6 are homework to you. 3, 4, 5 and 6 are homework to you. ये लिखना जरूरी है इसी वे में, क्योंकि रीजन मांगा हुआ है. इसी अंदाज में आप लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं ये चेक करने वाले क्वेश्चन करेंगे. आप इन दोनों का स्क्रीनशॉट लो. बचे हुए क्वेश्चन इस क्वेश्चन में के होमवर्क है, स्क्रीनशॉट करो. सो स्टूडेंट्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की. बहुत आसान क्वेश्चन है. देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. इन ट्रायंगल MNP ट्रायंगल में एंगल MNP है 90 डिग्री, यानी जो MNP एंगल है ये 90 डिग्री का है. सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर MP. MP देखो हाइपोटेनियस है MP हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाला गया है. MQ 9 है, QP 4 है. NQ पूछा है. देखो प्रॉपर्टी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगता है यहाँ पे. थ्योरम वो प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP मिल जाएगा. NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP पढ़े हम लोगों ने कल, जो प्रॉपर्टी पढ़े थे बस वही लग रही वहां पे. देखो ये सारा गिवन तो मैंने लिख लिया हो. मैं डायरेक्ट लिखूंगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ विच प्रॉपर्टी, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी क्या है? वो ज्योमेट्रिक मीन वाली प्रॉपर्टी NQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू MQ इंटू QP, यानी 9 इंटू 4 NQ स्क्वायर. ठीक है. NQ इज इक्वल्स टू 9 4 जा 36, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट. सो NQ क्या आ जाएगा 6. NQ इज इक्वल्स टू 6 यूनिट. ऐसे जो क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में या तो 1 मार्क या तो 2 मार्क के लिए पूछा जाता है, लेकिन जो स्टूडेंट को प्रॉपर्टीज पता है वही लोग इसको सॉल्व कर पाता है. ओके चलो, ऐसा ही एक क्वेश्चन मिला जुला हम लोगों को दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर 3. टेक अ लुक एट क्वेश्चन नंबर 3. QPR इज 90 डिग्री दिया हुआ है. ट्रायंगल QPR है, उसमें QPR एंगल कितने का है? 90 डिग्री का. सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर QR पे PM परपेंडिकुलर. देखो ये 90 है QPR, तो ये हाइपोटेनियस हो गई हाइपोटेनियस. ये हाइपोटेनियस होगी तो हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाला है. फिर से यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम या सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लगते दिख रही है, क्योंकि देखो परपेंडिकुलर जो डाला गया है वो हाइपोटेनियस पे डाला गया है. PM 10 दिया है, QM 8 दिया है और पूछा है QR. ये पता करना है हम लोगों को कितना है. देखो QR निकालने के लिए MR पता रहने होना, और MR पता लगेगा हमें बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. ये देखो PM परपेंडिकुलर QR बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, और यहाँ से हम लोग निकालेंगे MR को. ठीक है चलो. देखो मैं QR निकालना है तो उसके लिए पहले MR निकालना पड़ेगा. फॉर QR यू हैव टू फर्स्ट फाइंड MR. तो मैं लिखूंगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ, मैंने देखो सब प्रॉपरली डेकोरेट किया हूं. गिवन टू फाइंड एंड सॉल्यूशन बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन. व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? यू नो इट वेरी वेल. दैट इज PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR. 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 इंटू MR. देयरफॉर 100 अपॉन 8 इंटू MR. ठीक है. डिवीजन करो. डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो 12.5 आ जाएगा. जो MR है वो आ जाएगा 12.5. MR 12.5 आ चुका है. अब हम लोग निकालेंगे QR. सो QR इज इक्वल्स टू QM प्लस MR. QR इज इक्वल्स टू QM प्लस MR. ये देखो हमने प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगाया. PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR. 108 MR, 100 अपॉन 8 MR. ये आ गया. डिवीजन करें तो 12.5. तो ये अब क्या होगा? QM है 8 प्लस 12.5 यानी 20.5 आ गया. QR कितना आ गया? 20.5. सो हम लोग आंसर में लिखेंगे QR इज इक्वल्स टू 20.5.
ओके, इन दिस वे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन बड़े इजी आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को जमने चाहिए ये पूरे तरीके से। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करो और हम बढ़ेंगे आगे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाके प्रेजेंट भी लगाओ, अपना पूरा नाम लिख के। सो स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? फाइंड आरपी एंड पीएस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि ट्रायंगल पीएसआर में ये जो एंगल है एस, ये 90 डिग्री का है, एंगल पी जो है ये 30 डिग्री का है, साथ ही साथ एसआर जो है वो 6 है, ये दिया है, ठीक है। और हमें 2 फाइंड करने क्या बोला गया है? आरपी और पीएस। आरपी और पीएस हम लोग देखो कैसे बताएंगे। ये 90 है, ये 30 है, ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितने का हो जाएगा? 60 का। जो तीसरा एंगल है वो 60 का होगा। और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी यहाँ पे? 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगेगी इसको प्रूव करने के लिए। देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल पीएसआर एंगल एस इक्वल टू 90, एंगल पी इक्वल्स टू 30, देयरफॉर एंगल आर इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, एक 90 एक 30 तो अपने आप 60 होगा ना, क्योंकि तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। ओके, सो ये हो गया 60 डिग्री का। अब हमें पहले निकालना है आरपी, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, और आरपी क्या है? हाइपोटेनियस है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री यानी एसआर इज हाफ ऑफ आरपी, एसआर इज हाफ ऑफ आरपी। ओके, हम यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी? बोलो क्या है प्रॉपर्टी? देखो एस आर इज इक्वल्स टू साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ आरपी। लिखेंगे ना, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। होता है ना हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, यानी 6 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू आरपी। सो 6 इंटू 2 इज इक्वल्स टू आरपी। सो जो आरपी है हमारा वो है 12। आरपी आ गया हमारा 12, यानी आरपी हम लोगों ने निकाल लिए 12। अब बच रहा एसपी। एसपी के लिए मदद लेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री की। एसपी के लिए मदद लेंगे साइड अपोजिट टू 60 डिग्री की। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस भी हमारे पास में 12 निकल गया। ठीक है, नाउ ये देखो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज पीएस is √3/2 times RP. Side opposite to 60 degree is √3/2 times hypotenuse. √3/2 RP, RP कितना है? 12 है RP, PS है 12 RP, yes, ये 6 है, 6√3। सो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? बोलो, आंसर में लिखेंगे हम लोग आरपी कितना है? 12 यूनिट्स, कॉमा पीएस इक्वल्स टू 6√3 यूनिट्स। सो इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन व्हिच इज अ वेरी इजी वन, एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर क्वेश्चन नंबर 5 टू। हाँ, 5 पे भी चले जाना है आप लोगों ने, 5 के लिए भी चले जाओ, 5 के लिए भी चले जाओ। ठीक है, 5 के लिए भी चले ही जाते हैं ना हम लोग। यहीं से एक्टिविटी क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को एक, ठीक है, मैं यहीं पे सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फॉर फाइंडिंग AB and BC with the help of information given in figure 2.20.
कंप्लीट द एक्टिविटी, ये एक्टिविटी कंप्लीट करने बोला है। ठीक है, हम लोगों को ये फिगर दिया हुआ है, बोला ये साइड को इक्वल है, ये रूटेड है ए बी सी और ये 90 है। देखो राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होगी तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो वो 45 के नहीं होंगे। देखो ना, राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90 का हो गया और उसकी दो साइड सेम दी है, तो बचे हुए दोनों एक्यूट एंगल सेम होंगे। एक्यूट एंगल सेम होंगे तो कौन से होंगे? 45। आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल हैव बोथ द एक्यूट एंगल्स ऑफ 45 डिग्री। आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल के जो दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल के जो दोनों एक्यूट एंगल्स होते हैं, आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल के जो दोनों एक्यूट एंगल होते हैं वो 45 के होते हैं। कुछ उसी प्रकार की मेरे को वो एक्टिविटी दिख रही है, कुछ उसी प्रकार की मेरे को वो एक्टिविटी दिख रही है। देखो मैं ये दो फेज में इधर सॉल्व करता हूँ। ये पहला फेज बोला गया है AB इक्वल्स टू BC, क्या है ये? गिवन। AB इक्वल्स टू BC क्या है हम लोगों को? गिवन है ना पहले से, ठीक है। और BAC कितने का होगा? फिर BAC 45 का होगा। BAC will be equal to 45 डिग्री। Why will it be a 45 डिग्री? 45 डिग्री क्यों रहेगा वो? ये भी कोई पूछने की बात है। ये आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके एक्यूट एंगल 45 पिच होते हैं। अब AB is equals to BC is 1/2 times AC। यही पूछा है ना, AB equals to BC is equal to how many times? हाउ मेनी टाइम्स तो मतलब दिया 1/2 टाइम्स। कैसे? प्रॉपर्टी से, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर रहे हैं। 1/2 इंटू √8, देखो 1/2 इंटू इधर जाते ना 4 इंटू √2, 1/2 2 इंटू √2 कैंसल। AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू क्या आ गया? 2। आप लोग बराबर बॉक्सेस भरोगे तो आंसर मिलेगा, बराबर आंसर भरोगे, ठीक है। हाँ, तो वो बराबर आंसर मिलेगा आपको। बॉक्सेस बराबर भरने, मैंने सॉल्व कर दिया, प्रॉपर्टी लगा करके मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है और ये पेपर में 2 मार्क के लिए आ सकता है। 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आप लोग ये 4th और ये 5th क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। सो स्टूडेंट्स, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यानी एक स्क्वायर है उसकी साइड निकालो और साइड निकालने के बाद में पेरीमीटर भी निकालो। हुज डायगोनल इज 10। डायगोनल हम लोगों को दी हुई है, स्क्वायर की डायगोनल दी हुई है। ओके, एक डायगोनल दी हुई है। जैसा मैं एक स्क्वायर बनाता हूं, ओके, ये मैं बना रहा हूं स्क्वायर। ये बना दिया मैंने स्क्वायर ABCD। उसकी एक डायगोनल दी है तो वो डायगोनल भी ड्रॉ कर लेता हूँ। वो दिया है 10 सेंटीमीटर डायगोनल। अब स्क्वायर की हर एक साइड क्या होती है? इक्वल होती है। तो मुझे साइड निकालना है। मैं लेट द साइड भी बोलूँगा 1 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है? 1 सेंटीमीटर। क्या लगाऊंगा? हर एक एंगल कितने का होता है? 90 का होता है। स्क्वायर में होता है कि नहीं होता है 90 का? यस, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, x मिल जाता। देखो कैसे निकाल रहा हूं। मैं बोलूंगा पहले लेट ABCD बी अ स्क्वायर। ABCD क्या है? स्क्वायर है। तो AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू CD इज इक्वल्स टू DC। ठीक है, लेट कर लेते हैं और इसको बोल देते हैं 1 सेंटीमीटर। सभी साइड्स कितनी है? 1 सेंटीमीटर है बोलेंगे, ठीक है। ओके, 1 सेंटीमीटर है बोलेंगे। और डायगोनल इसी कितना दिया हुआ है?
डायगोनल AC कितना का दिया हुआ है हम लोगों को? डायगोनल AC दिया है ये, ओके। उसके बाद में हम लोग बोलेंगे एक ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। इन अ ट्रायंगल ADC, ये ADC ट्रायंगल दिख रहा है, ADC ट्रायंगल, यस ये ADC ट्रायंगल। इस ADC ट्रायंगल में एंगल जो है ADC ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम मालूम ही अपने को क्या है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी 10 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब इधर सॉल्व करो, देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 100/2 यानी 50 हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो फिर x इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 50। स्क्वायर रूट ऑफ 50 को कैसा लिखता हूं मैं? 25 into 2, x इज इक्वल्स टू 5 रूट 2, यानी साइड ऑफ स्क्वायर is 5 root 2 centimeter. Okay, so I have got the side of the square, that is 5 root 2 centimeter. Now I am going towards finding the perimeter of square, which is a very easy one. We have studied it in 5th standard. Perimeter of square is equals to 4 into side, means 4 into 5 root 2, 5 4s are 20 root 2 centimeter. Therefore, in answer what we are going to write? Side of square is 5 root 2 centimeter and perimeter of square is 20 root 2 centimeter. So this was a very easy question. You just need to practice this question and you can make new questions for new figures too. Okay, so make the screenshot of this question and we will be moving forward. Okay students, so here it is question number 7. अब बारी है क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि एक बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है हम लोगों को क्वेश्चन में, DFE 90 डिग्री है और FG इज परपेंडिकुलर ED। देखो DFE 90 है तो ये जो ED होगा ये हाइपोटेनियस होगा ED, और ये हाइपोटेनियस में हमने परपेंडिकुलर डाल दिए। हाइपोटेनियस पे परपेंडिकुलर डाल दिए तो दो प्रॉपर्टी खुल जाती है, सिमिलैरिटी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ठीक है, तो देखते हैं GD 8 FG 12। पहले पूछा EG, देखो EG के लिए प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगेगी, EG निकालने, GF स्क्वायर इज इक्वल टू GD इनटू EG निकल जाएगा, पहले इससे निकाल लेते हैं। इन अ ट्रायंगल DEF क्या है? FG एंगल DFE इक्वल्स टू 90 डिग्री। DEF में DFE 90 डिग्री है, FG परपेंडिकुलर है ED को बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, बाय प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। क्या है ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी? FD स्क्वायर इज इक्वल्स टू GD इनटू EG है। हाँ, 12 स्क्वायर 8 इंटू EG 144, 8 इंटू EG, EG इज इक्वल्स टू 144/8। कैसे किया ये इधर बताता हूँ। 144/8 इज इक्वल्स टू EG, तो EG इधर लिख लिया, वो इधर लिख लिया, डिवाइड करेंगे, कितना बच गया? कितना आएगा EG? 8 1 8। ओके, तो फिर बच रहा कितना? 6 8 8 64 18। सो EG इज 18। डिवीजन करेंगे तो आंसर आएगा उसका 18। EG कितना आ गया? 18 आ गया। EG 18 आ गया। अब सेकेंड पार्ट में पूछा है FD, ये रहा FD, ये इस ट्रायंगल में ये DGF या FGD दिख रहा ट्रायंगल, FGD ट्रायंगल दिख रहा।
ये DGF दिख रहा होगा, DGF इधर ध्यान दो, ये DGF ट्रायंगल, ये DGF में पाइथागोरस थ्योरम, DGF में पाइथागोरस इन ट्रायंगल DGF एंगल DGF इक्वल्स टू 90 डिग्री है। DGF 90 डिग्री, DGF 90 डिग्री है बाय पाइथागोरस थ्योरम। लग गई पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है? DF, यानी FD लिखो आप लोग, DF भी लिख सकते, चलता, कोई बात नहीं है। हो जाएगा DG स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर, आ रहा दिन में FG स्क्वायर कितना हो जाएगा? DG 8 स्क्वायर 12 स्क्वायर 64 प्लस 144 8 10 208 FD का स्क्वायर कितना आ गया? 208। सो FD निकालना है आप लोगों को, FD सो स्क्वायर रूट ऑफ 208। इसको देखो कैसा लिख रहा मैं, इसको लिख रहा हूं मैं 16 into 13। ये जो 208 है 16 13 आ रहा है, 16 परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 रूट 13, तो FD कितना आ गया? 4 रूट 13। अब है थर्ड पार्ट, वो है EF निकालना है। DF हमारे पास है, EG भी हमारे पास में है, ठीक है। तो हम लोग EGF ट्रायंगल लेते हैं, ये इधर वाला EF निकालना है। EG कितना है हमारा? 18 आ गया ना, EF निकालना है, ठीक है। तो वही चीज हम लोग करेंगे। इन ट्रायंगल EGF एंगल EGF इज इक्वल्स टू आएगा, EGF जो एंगल है वो इक्वल आएगा किसको? EGF एंगल आएगा 90 डिग्री को इक्वल। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पूरा स्पेलिंग लिखना जरूरी है, मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप लोग फुल फॉर्म ही लिखेंगे। लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज है EF स्क्वायर यानी EG स्क्वायर प्लस FG स्क्वायर। EG कितना है? 18 स्क्वायर। FG कितना है? FG 12 स्क्वायर। 18 का स्क्वायर कितना है? EF स्क्वायर आ गया। अब 18 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 18 का स्क्वायर 324 प्लस 144 प्लस करो 8 6 4 यानी EF स्क्वायर कितना आ गया? 468। अब EF स्क्वायर नहीं चाहिए हमको, EF चाहिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ 468। अब इसके फैक्टर्स निकालेंगे हम लोग। फैक्टर्स आएगा 36 into 13, 36 into 13, सो आंसर आ जाएगा 6 रूट 13। ये आप लोगों को करना है बराबर से, फैक्टर वगैरह निकालना है इसके। आप लोगों को ऐसे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा 468 वगैरह, ठीक है ना। 468 वगैरह करोगे तो बराबर आएगा वो 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर 2 से ऐसे जाओगे तो फिर कैंसिल होते हुए आएगा वो। उसी हिसाब से आप लोगों को करना है, ध्यान रखो। मैं यहाँ डायरेक्ट प्रैक्टिस के लिए लिख रहा हूँ और बाद में आखिर में हम लोग लिखेंगे आंसर, ठीक है। जो भी हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं उसका लिखेंगे फिर हम लोग आंसर। आंसर कैसा रहेगा? जो जो चीजें पूछी हुई है, पहले EG 18, फिर सेकंड FD आया 4 रूट 13 और थर्ड EF जो क्या 6 रूट 13। आराधन में इस हिसाब से आप लोगों को करना है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन था, सारी प्रॉपर्टीज लगाए और आंसर निकाले। आप लोग भी इसको देखो, समझो, प्रैक्टिस करो अच्छे से। ओके, इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग जा रहे हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, बहुत इजी है। फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल whose length is 35 and breadth is 12। एक रेक्टेंगल बनाओ, उसकी एक डायगोनल बना दो और डायगोनल की लेंथ निकालो। लेंथ ब्रेथ दी है। अब देखो ना, मैंने देखो क्वेश्चन ही वैसा है, सिंपल क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगा के। सबसे पहले बोलेंगे लेट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल। क्या है वो? एक रेक्टेंगल है रेक्टेंगल, ठीक है। ये है रेक्टेंगल बोलेंगे, ठीक है। इसको रेक्टेंगल बोल दिए तो यहां पर बोलेंगे AC इज डायगोनल। AC डायगोनल है, AC डायगोनल है। लेंथ
इज इक्वल्स टू AD इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। ब्रेथ दी है 12, कौन सी दो साइड्स ब्रेथ है, AB और DC, ये है 12 सेंटीमीटर। ओके, सो अब मैं जा रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज 90 डिग्री बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखो क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है, ये बोलता है AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बोलता है। लगा दो और आंसर ले लो। 12 स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर 144। AC का स्क्वायर क्या आएगा, चेक कर लो फटाक से, AC का स्क्वायर क्या आएगा, तो AC का स्क्वायर आएगा 1225। एडिशन करो 9 6 3 1, सो AC स्क्वायर 1369। 1369 किसका स्क्वायर है, 37 का, है ना। ये आ गया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 1369 यानी AC क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1369, ये है 37 का स्क्वायर, सो AC आ गया 37। AC क्या है, डायगोनल। आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 37 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आई, 37 सेंटीमीटर। 2 मार्क का क्वेश्चन, सिंपल वाला 2 मार्क का क्वेश्चन। चलो इसका फटाक से स्क्रीनशॉट करो, हम बढ़ेंगे 90वें क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, हियर इट इज द 9th क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन की जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, इन द फिगर M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, यानी क्या है, पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR। QR का वो मिड पॉइंट है, M पॉइंट। इसी का मतलब क्या है, RM या QM क्या है, हाफ है QR के, होगा इसी का ये मतलब। RM या QM क्या होंगे, हाफ होंगे किसके, QR के, क्योंकि M मिड पॉइंट है। एंगल PRQ 90 डिग्री का दिया हुआ है हम लोगों को। PRQ 90 डिग्री का है, तो ये ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। हमें प्रूव करना है PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स PM स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स PR स्क्वायर। ठीक है, अभी हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, देखो बहुत ही आसान टेक्निक है इसे प्रूव करने की। इसे प्रूव करने के लिए बहुत ही आसान टेक्निक हम लोगों को दी हुई है। अब वो आसान टेक्निक क्या है, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि हम लोग पहुंचेंगे कैसे इसके प्रूफ तक के। देखो इसके प्रूफ तक के पहुंचना कैसे, सबसे पहले बात देखो PQ स्क्वायर आ रहा है, तो ये देखो ये PRQ स्क्वायर में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर हो जाएगा। PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। अब उसके बाद में ये ट्रायंगल को देखो, PR ये जो है PRM ट्रायंगल, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। अब RM की जगह क्या लिखूंगा मैं, RM की जगह पर RM के जगह पे हाफ ऑफ QR या RQ, QR लिखूं या RQ लिखूं, देखो है लिख दिया, ये थ्योरम PRM में लगा। सो PM स्क्वायर क्या बन जाएगा, PR स्क्वायर प्लस 1/4 RQ स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 बन गया ऐसा। अब देखो PM स्क्वायर, ये पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई, PM स्क्वायर 4PR स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 RQ स्क्वायर, 4 4 कैंसल, क्या बन गया, इधर देख लो 4PM स्क्वायर 4PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर बन गया। अब इसको देखो तोड़ के लिख रहा हूं, 4 है ना, तो 3 इधर और 1 इधर, 3 इधर 1 इधर, आराधन में 3PR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। ठीक है, अब यहां देखना 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर,
4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर। अब चेक करना, ये देखो pq स्क्वायर क्या है, pr स्क्वायर प्लस rq स्क्वायर है pq स्क्वायर। ये देखो ना, ये इधर है, इसको मैं लिख दूंगा pq स्क्वायर, ये इन दोनों इसको इधर भेज दूंगा, 4pm स्क्वायर माइनस 3pr स्क्वायर इक्वल टू pq स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? पहले बड़े वाले ट्रायंगल में PRQ में पाइथागोरस थ्योरम, बाद में छोटे वाले में PRM में पाइथागोरस थ्योरम। और ये जो मिड पॉइंट वाले की वजह से जो आया था हमको कि MR = हाफ QR, उसका भी हम लोगों ने वहां पर भरपूर ऐसा यूज करे हैं और उसी से हम लोगों ने इसका प्रूफ निकाले। देखो अब अपन अच्छे से उसको लिखेंगे, अच्छे तरीके से लिखेंगे उसको। देखो, इन अ ट्रायंगल PRQ, एंगल PRQ is equals to 90 degree. Therefore, by which theorem? Pythagoras theorem. क्या होगा? PQ square is equals to PR square plus RQ square. इक्वेशन नंबर 1। अब बारी है हमारे दूसरे ट्रायंगल की, वो छोटा वाला जो ट्रायंगल है PRM। In a triangle PRM, angle PRM equals to 90 degree. Therefore, by which theorem? Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. Pythagoras theorem क्या बोलेंगे हम आपका? PR square, no PR नहीं, PM square is equals to PR square plus RM square। हो जाएगा। अब RM क्या है? हाफ QR है। PR square RM की जगह हाफ RQ by 1, ये 1 में हमने बताया RM is half of RQ। सॉल्व करेंगे तो PM स्क्वायर, PR स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, RQ स्क्वायर, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू PM स्क्वायर, 4 इंटू PR स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 RQ स्क्वायर, 4PM स्क्वायर, 4PR स्क्वायर, 4RQ स्क्वायर। ये 4 कैंसल। ठीक है, देखो क्या करते हुए आया है, ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए चलो। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में 3 मार्क 4 मार्क के लिए पूछता है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वे में जाके इसको सॉल्व करना है, इसलिए आप लोगों को ज्यादा मार्क के लिए पूछता है। आपकी प्रैक्टिस लगेगी ये क्वेश्चन की, 4-5 बार कर डालने का, बिना देख के 4-5 बार कर डालो, कोई टेंशन नहीं है। देखो ये हो गया 4PM स्क्वायर, जो रिक्वायर्ड प्रूफ है उसमें 4PM स्क्वायर है। देखो अब PR में 3 चाहिए ना, तो इसको देखो 3PR स्क्वायर अलग और 1PR स्क्वायर अलग। ठीक है, 4PM स्क्वायर, ये 3PR स्क्वायर इधर ला लेता, यानी ये पार्ट तैयार हो गया। तो इधर क्या बचा है? PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर क्या है? PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर हो गया प्रूफ, हो गया प्रूफ बाय 1। अरे ये 2 है, बाय 2, इसी को उल्टा करके लिखेंगे तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखो कितने आसान तरीके से निकाले। अच्छी प्रैक्टिस रही तो बिंदास सॉल्व होता, अच्छी प्रैक्टिस रही तो बिंदास सॉल्व होता। देखो हम लोगों ने क्या करे, दिया क्या था हम लोगों को, M इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, M मिड पॉइंट है QR का, और PRQ एंगल 90 डिग्री का है। तो हमने ये 2 चीजें यूज करें।
ये मिड पॉइंट है तो RMMQ क्या है बोले हाफ है किसके QR के, जो हमको आगे काम में भी आया। फिर हम लोगों ने PRQ ट्रायंगल लेकर उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर यानी RQ स्क्वायर। ओके, इक्वेशन 1 बोल दिए। फिर ये छोटे ट्रायंगल में PRM में पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो क्या बना वो PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर, PM स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर। अब RM स्क्वायर के जगह क्या पुट करें हाफ ऑफ RQ, ये QR हाफ ऑफ RQ, तो वो बन गया PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर प्लस 1/4 RQ, 1/4 RQ स्क्वायर। ठीक है, पूरे इक्वेशन को हमने करे 4 से मल्टीप्लाई, पूरे इक्वेशन को जब 4 से मल्टीप्लाई करें तो बन गया 4M स्क्वायर 4PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। हमने ये 4PM स्क्वायर को, ये 4PM स्क्वायर को बहुत दिमाग से, ये वाली स्टेप देखो, ये वाली, यहाँ इसको 3PR स्क्वायर अलग लिखे, 1PR स्क्वायर अलग लिख दिए। ठीक है, 3PR स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दिए, यहाँ बचा PR प्लस RQ स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इक्वेशन 2 में है PQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा करके जो बनाया है। सो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ। सो ऐसे वे में हम लोगों ने ये इजी तरीके से इसको सॉल्व किया है। आप लोग इसकी जम के प्रैक्टिस करो 4-5 बार, स्क्रीनशॉट लो, हम बढ़ रहे हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग सॉल्व करने पे आ गए हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। ओके, चलो। Walls of two buildings on either side of a street are parallel to each other। क्या बोला है? एक चौक है, एक स्ट्रीट है, मान के चलो ये क्या है, ये स्ट्रीट है, मान के चलते हम लोग ये स्ट्रीट है, और ये स्ट्रीट में यानी ये बीच में से रास्ता है, एक तरफ एक बिल्डिंग है, दूसरे तरफ दूसरी बिल्डिंग है, एक तरफ एक बिल्डिंग है, दूसरी तरफ दूसरी बिल्डिंग है। ये देखो, ये मैं पहली बिल्डिंग बना रहा हूं, ये बन गई पहली बिल्डिंग, ये बन गई मेरी पहली बिल्डिंग। ये बिल्डिंग को मैं नाम देता हूँ XB, XB ये मेरी पहली बिल्डिंग है। और स्ट्रीट के उसके सामने में जैसे ये एक बिल्डिंग है, ये गैप है ग्राउंड, और उधर में एक दूसरी बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है XB, गैप है, रास्ता जा रहा है बीच में से, उसके उस साइड दूसरी बिल्डिंग बना रहा हूं। ये बना दिया दूसरी बिल्डिंग, इसको बोल देता हूं मैं YD, इसको बोल देता हूं मैं YD। ठीक है, इसको YD बोल रहा हूं, इस बिल्डिंग को नाम दे दिया बिल्डिंग को बस। आगे क्या बोल रहा है? अ लैडर 5.8 मीटर लॉन्ग, 5.8 मीटर की एक लैडर है, सीढ़ी पता है ना आप लोगों को, निशानी जिसको बोलते हैं सीढ़ी, वो लैडर है। इज प्लेस्ड ऑन द स्ट्रीट सच दैट, वो कहाँ रखी हुई है लैडर? एक स्ट्रीट पर रखी हुई है ना, स्ट्रीट है ना बीच रास्ते पे, दोनों बिल्डिंग के बीच में कहीं पे तो। सच दैट कैसी रखी हुई है? ऐसी रखी हुई है दैट इट्स टॉप रीचेस द विंडो ऑफ द बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4 मीटर। यानी मान के चलता हूं मैंने यहां पर अपनी लैडर रख दी, C इज द पोजीशन ऑफ लैडर, जो कि स्ट्रीट पे है। तो जो पहली बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की जो विंडो है, ये लैडर की कितनी लंबाई है? 5.8 मीटर लंबाई है। बराबर जो पहली बिल्डिंग की विंडो है ना, ये यहाँ पर है, यानी 4 मीटर हाइट पे, ग्राउंड से 4 मीटर हाइट पे पहली बिल्डिंग की विंडो है, वहां पर वो लैडर बराबर मैच हो जाएगी। लेट इट बी A, पोजीशन ऑफ द विंडो इज A। सो यानी AB क्या है? डिस्टेंस ऑफ द विंडो फ्रॉम द ग्राउंड। और लैडर स्ट्रीट पे ऐसी जगह पे है कि अगर हमने उसको पहले बिल्डिंग के तरफ मोड़े तो बराबर वो पहले बिल्डिंग के विंडो के पास में आ जाती है, जो कि कितने हाइट पे है विंडो? 4 मीटर की हाइट पे। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर,
ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। अब ये लैडर उठा के पलटा रहे, देखो लैडर की पोजीशन यही है, पहले वो ये बिल्डिंग के ऊपर में लगी हुई थी, ये लैडर है सपोज, पहले ये बिल्डिंग पे थी, पोजीशन बदल रही नहीं, दूसरे बिल्डिंग पे आ जा रही लैडर, यानी पहले ये बिल्डिंग पे लैडर थी, खिड़की पे जा रही थी, पलटी नहीं, पोजीशन नहीं बदली, बस दिशा बदल गई, दूसरे तरफ चली गई। ऑन टर्निंग द लैडर ओवर टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट इट्स टॉप टचेस द विंडो ऑफ द अदर बिल्डिंग एट अ हाइट ऑफ 4.2 मीटर। अब दूसरी जो बिल्डिंग है उसकी जो विंडो है वो ये 4.2 मीटर पे, ये 4.2 मीटर पे, 4.2 मीटर पे उसकी विंडो है, बराबर इसको घुमाया आप लोगों ने, बराबर ये 5.8 की चलेगी, लैडर की लेंथ कम ज्यादा होती क्या, फिक्स लेंथ की रहती लैडर, बराबर 4.2 मीटर की हाइट पे बिल्डिंग के विंडो पे जा रही दूसरे बिल्डिंग के। फाइंड द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, यानी जो स्ट्रीट है ये कितनी लंबी है ये निकालो, स्ट्रीट कितनी लंबी है निकालो। ये देखो बिल्डिंग का स्ट्रीट से एंगल कितने डिग्री का रहता, बिल्डिंग का स्ट्रीट से एंगल कितने डिग्री का रहता, 90 डिग्री का। ये ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ ये मिलता, ये ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाओ ये मिलता, दोनों का एडिशन करो विड्थ ऑफ द स्ट्रीट मिल जाती, स्ट्रीट कितनी चौड़ी है। लेकिन इस क्वेश्चन को करते वक्त आप लोगों को सारी चीजों का मेंशन भी तो करना पड़ेगा, यानी जो डायग्राम आप लोगों ने बनाया वो सब बताना तो पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि नहीं, सब चीजें बताना पड़ेगा कि नहीं ये क्वेश्चन में, कि bx रिप्रेजेंट द बिल्डिंग, फर्स्ट बिल्डिंग, dy रिप्रेजेंट्स द सेकंड बिल्डिंग, है ना, ऐसा बोलना पड़ेगा ना पूरी। AB is the height of the first building, height of the window of the first building. ED is the height of the window of the second building. AC is the position of the ladder on the first building. C is the position of the ladder on the second building. ये सारी चीजें बोलना पड़ेगा, और बोलने के बाद में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम पे जाएंगे। तो देखो लिख रहा मैं इधर में, देखो कैसा लिखूंगा, लेट XB represents the first building and YD represents the second building या other building, ठीक है, पहली बिल्डिंग को XB, दूसरे बिल्डिंग को YB। AB is the height of window of first building। पहली बिल्डिंग की जो विंडो है वो ग्राउंड से कितने हाइट पे है, AB हाइट पे है। फिर वैसे लिखेंगे ED is the height of विंडो ऑफ अदर बिल्डिंग, जो दूसरी बिल्डिंग है। उसके बाद में बोलेंगे AC एंड EC आर द टू पोजीशंस ऑफ लैडर ऑन आइदर साइड ऑफ स्ट्रीट। स्ट्रीट के जो दोनों तरफ है, दोनों तरफ, आइदर यानी दोनों तरफ, AC and EC are the two positions of ladder on either side of the street respectively, यानी AC पहले वाले तरफ और EC दूसरे वाले तरफ, ठीक है। अब मैं सारी चीजें लिखूंगा, AC equals to EC equals to 5.8 मीटर, AB 4 मीटर, ED 4.2 मीटर, ठीक है। अब मैं जब मैं ट्रायंगल में, देखो ट्रायंगल में, कौन से ट्रायंगल में, इन अ ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डिग्री, 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिखोगे, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हो गया, लग गया।
AC स्क्वायर, ये देखो 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो देयरफॉर 5.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ क्या किया है, इधर ध्यान दो, बहुत सिंपल सी चीज किया हूं मैंने वहां पे कि इसको निकालना है ना BC स्क्वायर को, तो इसको प्लस 4 स्क्वायर को उधर भेज दिया। ये जो 5.8 का स्क्वायर जो आ जाता है, 5.8 का जो स्क्वायर आ जाता है 33.64 आ जाता है माइनस 16। 33.64 माइनस 16 कितना आएगा, 17.64 आ जाएगा, 17.64 BC स्क्वायर। तो फिर BC निकालना है, तो 17.64 का स्क्वायर, सो BC आ गया 4.2, BC आ चुका है 4.2 मीटर। सो योर BC इज 4.2 मीटर। स्क्वायर रूट लेंगे तो 17.64 का। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालना है आपको लर्न रहना चाहिए। वो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड हम लोगों ने सीखे थे, ये स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड 9th स्टैंडर्ड की बुक में सीखे थे, रियल नंबर्स लेसन में। रियल नंबर्स लेसन रिवीजन करना तो आपको समझ में आएगा। वो जिसको पता नहीं है उसको इस चीज का ध्यान रखना ही पड़ेगा, कैसे निकाले करके हम लोगों ने। ओके, इसके बाद में देखना ये BC निकल जाने के बाद में अब बचा है CD की बारी है। अब CD की बारी है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन तो आप लोगों के ध्यान में आ गया, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। ओके, मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, चलो इधर ध्यान दो। अब इसके बाद में इन ट्रायंगल, दूसरे ट्रायंगल में जा रहे हैं अभी हम लोग। ABC में थे, EDC में जा रहे हैं। EDC एंगल EDC इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल EDC कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का EDC। ओके, EDC 90 डिग्री का, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम हियर, EC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ED स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। बोलो EC स्क्वायर कितना है, 5.8 का स्क्वायर, ED कितना है 4.2 का स्क्वायर, CD स्क्वायर। ओके, अब 5.8 का स्क्वायर हम लोगों ने क्या निकाले थे, 33.64 और 4.2 का स्क्वायर 17.64 प्लस CD स्क्वायर, ये इधर आएगा 33.64 इज माइनस 17.64 इक्वल्स टू CD स्क्वायर। सो CD स्क्वायर कितना आ गया, कितना आ जाएगा, 17 में से ये जाएगा तो बचेगा 16। देयरफॉर CD कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इक्वल टू 4। सो CD कितना आ गया, 4 मीटर। हमें निकालना क्या है, ये इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसके बाद, ठीक है। इसके बाद में इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ये डायग्राम है अपना। अब हमें निकालना क्या है, BD क्या है, BC प्लस CD। फिर से एक बार देखो क्या निकालना है हमें, BD निकालना है, पूरा डिस्टेंस बिटवीन द स्ट्रीट, है ना, डिस्टेंस विड्थ ऑफ द स्ट्रीट। तो वो क्या है, BC प्लस CD, यानी क्या है 4.2 प्लस 4 यानी 8.2 मीटर। तो हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, width of the street is 8.2 मीटर। इस वे में हम लोगों ने इसको सॉल्व करे। बहुत आसान क्वेश्चन है हमारा, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ये क्वेश्चन में, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करो, अच्छे से देख लो, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉल्व करे। आपको कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। क्या करें हम लोगों ने, सबसे पहले डायग्राम बनाया, उसमें जो जो चीजें दी है वो सारी चीजें लिखे, फिर ABC लेके पाइथागोरस लगा के BC निकाले, वो निकल जाने के बाद में फिर EDC लेकर के उसमें पाइथागोरस लगा के CD निकाले, दोनों को ऐड कर दिए, अपने आप हमारा आंसर मिल गया। सो दिस वाज आवर प्रैक्टिस सेट 1.1।
2.1 जो कि बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है। 2.1 बहुत आसान एक्सरसाइज है। अब अगले इसमें और कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम की, और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज बाद में हम लोगों को सॉल्व करनी है। बहुत आसान लेसन है। प्रेजेंट ही लगाओ, कमेंट बॉक्स में जाके अपना पूरा नाम लिख के, कुछ क्वेरी है तो वो भी भेज सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। स्क्रीनशॉट करो। बाय बाय।